Hi, students. We will study today motion, which is second part of motion. And in previous section, we had studied physical quantity, which is of two types. First is scalar quantities, and second is vector quantities. Once again, we repeat this. Scalar quantities, those quantities which have only magnitude, not direction. For examples, speed and distance. In numerical values, if we take 5 kilometer per hour, always numerical values shows magnitude values. Other examples for distance, 5 feet. Here 5 is also magnitude, so shows magnitude. And now comes on vector quantities, those quantities which have magnitude as well as direction. Magnitude plus direction. Those quantities which have magnitude as well as directions are called vector quantities. For examples, force, momentum, displacement, etc. Example of these vector quantities: 48 kilometer east. Here east shows direction and 48, which is numerical values, shows magnitude. Clear? Now comes on next topic, physical quantities of motion. There are some physical quantities of motion. First is distance, second displacement, third speed, fourth velocity, and fifth uniform or non-uniform motion, and sixth is acceleration, and seventh graph, and eighth equation of motion, which is very important of this chapter, equation of motion. And separately we studied about distance, displacement, speed, velocity, accelerations. First of all, तो distance, displacement, speed, velocity and acceleration आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफ को एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस. And distance, what is distance? The actual path length
traveled by an object is called distance। एक एक्चुअल पाथ होती है जो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा ट्रेवल की जाती है, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। एंड सो डेफिनेशन इज द एक्चुअल पाथ, actual path means length traveled किसके द्वारा traveled by an object is called distance। और डिस्टेंस हम पढ़े हैं ऊपर in above topic, distance is scalar quantities. So I write here, it is a scalar quantity. It is a scalar quantities. And next property of distance, it always positive and cannot be zero. It always positive, can not be zero, means जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, जिसका सिंबल एम होता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे ये by graph method। Suppose this is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, and this is A, and this is B, and this is C. Now from A to C shows actual length, which is distance, and A B के पास यानी A से B तक यदि मान लेते हैं कोई पर्सन है ट्रैवल कर रहा है A टू B, तो इसने सपोज किया कि यहाँ पे ये 30 ये जो हमारा है, सपोज कर लेते हैं ये जो ग्राफ है वो मीटर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 30 मीटर हुआ, तो A टू B गया, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो गई इसकी 30 मीटर की होगी, जो कि पॉजिटिव शो कर रहा है। अब यही डिस्टेंस P टू C अगर चला जाए तो भी ये यानी बढ़ रहा है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो। तो ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टकट पाथ होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कोई भी शॉर्टकट डिस्टेंस है, शॉर्टकट डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, जैसे इस तरह से
तो ये तो हम यहाँ से चल दिए, तो ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो ये हमारा यहाँ से सपोज ए एंड बी है, तो यहाँ से अगर अगर हम चलना स्टार्ट किए हैं तो ये जो है हमारा शॉर्टकट जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। और पूरा ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज सो डिस्टेंस। तो जितना लंबा रास्ता होगा वो शो करेगा डिस्टेंस को, और जितना शॉर्टकट रास्ता होगा, जितना शॉर्टकट पाथ होगा वो शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी जो होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम बोलते हैं इनिशियल, इसे बोलते हैं हम फाइनल। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इनिशियल और इसको हम बोलेंगे फाइनल। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हम पढ़े हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम यहां लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो लिखेंगे इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बताएंगे एग्जाम्पल में, हम बताएंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है। और नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दिस इज सिंबल ऑफ मीटर। तो वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो हम डायरेक्शन जो होता है वो होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टूवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एक्सेट्रा। अब इसे हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ हमारा 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है। तो कोई भी जैसे पर्सन है ये ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो ये सपोज A है, ये B है एंड C है। तो A टू B गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव शो किया ना। और अगर ये यहाँ से फिर यहाँ चला आया, 10 के पास में चला आया, यानी 10 मीटर चल लिया, तो ये तो डिस्टेंस तो जो है कि 20 और एंड 10, अगर ये मीटर में शो कर रहा हो तो ये 20 एंड 10 30 हो गया। बट जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो हो जाता है यहाँ पे 20 माइनस 10, तो 10, यानी यहाँ पे घट गया, तो ये नेगेटिव ही हो जाता है। और दूसरा चीज बात करें कि ये 0 कैसे होता है, तो कोई पर्सन अगर ए से स्टार्ट किया, इफ अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए टू सी एंड अगेन बैक सी टू ए,
तो कोई भी पर्सन अगर ए से चला और सी पे गया और सी से वापस ए पे आया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो गया ना। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो जीरो को शो कर दिया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद की जो टॉपिक है वो है 1 मिनट्स। इसके बाद की जो टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड एंड वेलोसिटी को हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसको हम एक ही बार हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, या पहले हम ऐसा करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टू साइड में हम इसे टू साइड्स में लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया डिस्टेंस और इधर हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे कर लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़े थे कि जो एक्चुअल पाथ होती है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट में इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि ये जो होता है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by an object, and सेकेंड इसमें हम पढ़े थे कि इट इज स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। एंड इसमें हम थर्ड पढ़े थे इट ऑलवेज पॉजिटिव, it always positive can not be जीरो। ये जीरो नहीं होता है, पॉजिटिव हमेशा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होता है इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट between initial point and final point, initial point and final point। and next था it is वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है चूंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को शो करती है। एंड थर्ड पढ़े थे इसमें हम इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। इट्स क्लियर? ओके, नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक। डायरेक्ट हम जो है डिफरेंस के अकॉर्डिंग बता देते हैं। डिफरेंस
between speed and वेलोसिटी, सॉरी, वन साइड में हम स्पीड लिख लेंगे और दूसरे साइड में, अदर साइड में हम वेलोसिटी लिखेंगे। सो तो डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड जो होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी प्रति एकांक समय में तय दूरी स्पीड कहलाती है। तो इससे हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन बॉडी या एन ऑब्जेक्ट बाई एन ऑब्जेक्ट in per unit time। तो ये स्पीड शो करता है। तो डिस्टेंस जो कोई भी पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट है, अगर पर यूनिट टाइम में यानी पर सेकंड में या पर टाइमिंग में अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं स्पीड। और स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में, तो इसको हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। तो द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। और ऊपर हम पढ़े हैं कि ये जो होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसमें हम चलते हैं, इसकी पहली पॉइंट को देखते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? पर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल्ड किया जाता है तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। चूंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन को शो करता है, इन गिवन डायरेक्शन कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है किसी बॉडी के द्वारा एक निश्चित या किसी दिए हुए डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो वो वेलोसिटी को शो करता है। तो अगर हम वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो वो निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो वैल्यू भी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें तो हम पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी हो गया, और स्पीड को हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा स्पीड जो होगा, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसमें जो है कि ये हम यहाँ लिखेंगे इट कैन नॉट बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट, सॉरी इट कैन बी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव ही होती है, ये नेगेटिव ही होती है। आगे हम बताएंगे नेगेटिव कैसे होती है।
और 0 भी हो सकती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें हम अगर इसके फार्मूले की बात करें या यूनिट की बात करें, तो जो स्पीड को हम जो शो करते हैं, या ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम मेज़रमेंट जो होता है वो मीटर में होता है इसकी यूनिट, और टाइम की जो होती है वो सेकंड में होती है। तो इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी भी जो होती है, इसको भी हम उसी से दिखाते हैं मीटर, और जो टाइम होता है वो से। तो मीटर पर सेकंड स्पीड भी होती है और वेलोसिटी भी होती है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट, इसकी भी एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट जानेंगे हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, ये होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। जैसा कि पीछे हम बताएं, इनिशियल जो होता है, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं सपोज ए एंड बी, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट आल्सो नोन एज इनिशियल एंड सेकेंड पॉइंट इज फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी हम पढ़े एवरेज वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल अपॉन 2 से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन and second is non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म जिसकी हिंदी होती है एक समान गति। तो जैसे अगर कोई पर्सन है किसी साइकिल पे चल रहा है, मान लेते हैं बाई अकॉर्डिंग टू ग्राफ, सपोज ये हमारा टाइम ग्राफ है, यानी सपोज करते हैं ये 9 बजे से चलना स्टार्ट किया, 10 बजे, 11 बजे एंड 12 बजे, 12 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock एंड 11 o'clock। सपोज करते हैं यहाँ पे जब था तो इनिशियल पॉइंट पे 0 था, वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड यहाँ पे 100 हो गया, एंड यहाँ पे 200 मान लेते हैं, और यहाँ पे 300। तो कोई पर्सन है साइकिल से चलना स्टार्ट किया है, तो 9 o'clock टाइम में ये जीरो सपोज करते हैं, ये मान लेते हैं कि किलोमीटर पे ही है, तो बाइक से चलना स्टार्ट किया है, तो ये 9 o'clock टाइम पे ये 0 पे है, और 10 o'clock पे ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर 11 o'clock पे 200 एंड 12 o'clock पे 300 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन है जो व्हीकल के माध्यम से इक्वल टाइम में, यहाँ पे वन आवर हो गया, तो इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर। तो इनका जो डिफरेंस है 100 किलोमीटर का है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस
in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे डेफिनेशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कोई पर्सन है, बाइक से अगर चलना स्टार्ट किया है 9 o'clock पे, 10 o'clock एंड 11 एंड 12 o'clock, तो यहाँ पे जब यहाँ आया तो सपोज करते हैं 100 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे जो है 150 हो गया और यहाँ पे हो गया 300। तो यहाँ पे टाइमिंग तो शो कर रहा है इक्वल, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। तो हम इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन, टाइमिंग तो इक्वल है, इन इक्वल interval of time, the motion is said to be non-uniform motion. So here we saw there are two types of motion. First is uniform motion and second is non-uniform motion. Uniform motion is any type of body travels equal distance in equal interval of time. This type of motion called uniform motion. And here we saw non-uniform motion, when any type of body or object travels unequal distance in equal interval of time, the motion is said to be non-uniform motion. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखें कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। तो यूनिफॉर्म मोशन जो इसकी वेलोसिटी, तो अगर इस वेलोसिटी को शो कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमारा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा टाइम को शो करता है और ये हमारे स्पीड को शो करता है। सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइमिंग में जो डिस्टेंस है ट्रेवल करना वो अनइक्वल या जिग जैग कुछ इस टाइप से, या अपवर्ड और डाउनवर्ड इस टाइप्स के अगर ग्राफ को शो करता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन ग्राफ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंबल के बारे में जानेंगे। सिंबल्स
जितना अभी तक हम लोग पढ़ लिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी भी। इसका रोल है न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे चीज़ों को। स्पीड और वेलोसिटी जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो सेम होता है, और टाइम और एक्सेलरेशन एंड स्पीड, सॉरी स्पीड यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो शो करता है इन फिजिक्स सिंबल में, तो यस स्मॉल एस होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चूँकि ये जो होता है वो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है, तो ये डेल्टा से शो करता है। डेल्टा जो है कि एक छोटी चीज़ों को शो करता है, तो ये डेल्टा एस, इसको हम डेल पढ़ते हैं, डेल्टा एस। और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से, और फाइनल वेलोसिटी को वी से, और स्पीड को वी से, और टाइम को टी से, और एक्सेलरेशन को ए से। तो यहाँ पे हम स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस एस, स्पीड को हम वी और टाइम को टी से। तो ये हमारा एक फार्मूला हमें मिल जाता है। तो चूँकि वीडियो बड़ा लंबा हो गया, तो आज के लिए हम बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थैंक्स।